Dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss Euclid's axioms and postulates. In the previous video, I had discussed Euclid's geometry definitions and had defined the field terms. And today we will define Euclid's axioms and postulates. Before going to define Euclid's axioms or postulates, first of all, we will define here what is mathematical statement. What is mathematical statement, dear students? It is actually mathematical statement is actually a sentence. You can say it's combination of words which is either true or false, but not both. Means mathematical statement is actually a sentence which is either true or false. It is either, note this point, it is either true or false. True or, dear student, is false. So we can say जो mathematical statement it is either true or false, और a third option is here. जैसे कि उसमें लिखते हैं मे बी, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ वेरी कोल्ड, लेकिन जो ये सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, मेरे लिए तो कोल्ड हो सकता है तो आज का दिन, लेकिन किसी और के लिए नहीं हो सकता, इसलिए वैलिड नहीं है। तो इसलिए दो ही तरह के जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, या तो वो डियर स्टूडेंट्स ट्रू होते हैं या false होते हैं। एंड द ट्रू statements are also, or we can true statements are also, their students divided into two groups. One is universal truth. Universal truth. Universal truth means, dear students, truths without proof. They are assumed to be true without any proof or demonstration. Or the sun rises from the east, it is the universal truth. So there is no need to justify this fact. There is no need to prove this statement. So we call their students truth. But there are also truths. But that require proof. मीन्स ट्रुथ विथ प्रूफ। इसको समझने के लिए इफ देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप जो स्कूल में अपना जो फ़ी आप डिपॉजिट करते हो, जब आप घर में जाते हो, फिर आप पेरेंट्स से आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आपने जो फ़ी वहाँ पे डिपॉजिट किया है कि नहीं। आप सिंपली बोलते हैं हाँ मैंने डिपॉजिट किया, लेकिन वो फिर आपसे रिसिप्ट मांगता है उस स्कूल का। तो डैट मीन्स वो जब रिसिप्ट आप उसको दिखाते हैं वो है ट्रुथ विथ प्रूफ। या इसको और एक लोअर क्लास में सेवन्थ में मे बी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज डियर स्टूडेंट 180। ये जो स्टेटमेंट है यूनिवर्सल ट्रुथ, मगर ये हमने वहाँ पे प्रूव किया था। मीन्स ऐसे भी ट्रुथ्स होते हैं जो हमें प्रूव करने पड़ते हैं। जैसे कि फी तो हमने भरा था, लेकिन हमने वो प्रूव हुआ है जब हमने वहाँ पे इसका रिसिप्ट दिखाया। तो लेकिन कुछ ऐसे प्रूफ्स होते हैं, ट्रुथ्स होते हैं दिए जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स। एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स आर आल्सो divided into two groups, and one is axiom and their students another is postulate. So what are axioms and postulates? So here we can define these are the actually universal truths, means truths without proof. तो जब भी हम एग्जाम्स या postulate लिखेंगे, मैथ में देखेंगे, ज्योमेट्री में देखेंगे, कहीं पे, तो वो ऐसे ट्रूथ्स होते हैं, देयर इज नो नीड टू प्रूव दिस फैक्ट। जैसे कि टू इज देयर स्टूडेंट्स इवन नंबर, इट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। और 45 is not 45 is not a perfect square number. So these are the universal truths. Or we can say 2 is the only even prime number, this is the universal truth. तो जब भी हम examples या postulates, dear students, these are actually universal truths. Now we will define here what is axiom and axioms and postulates. So dear students, these are the assumptions that are obviously universal truths, but are not proved. These are the universal truths. Now dear students, you can note these pointers. Axiom and postulates are assumptions that are obvious universal truths, but not proved. Because these are the universal truths,
but the difference between the axiom and postulates here is that postulates are specific to geometry, मीन जो postulates है वो खाली हम geometry में यूज़ करते हैं, ना कि हम इसको ट्रिग्नोमेट्री अलजबरा जो मैथ के बाकी ब्रांचेस है वहाँ पे इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, खाली इसको हम स्पेसिफिक रखा गया है तो ज्योमेट्री. बट द ऑन द अदर हैंड द एग्जाम्स जो है दे आर यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, मीन दे आर यूज्ड इन अलजबरा, दे आर यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री, तो इनको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्स एंड पॉस्टुलेट्स एंड बट न्यू जो यूक्लिड था, यूक्लिड नेवर यूज्ड द टर्म एग्जाम, एक्चुअली उसने वहाँ पे जो टर्म यूज़ की वो आज नोशन, यूक्लिड्स नोशन, जिनको बाद में रिप्लेस किया गया डियरेक्टर्स एग्जाम्स के साथ. Now, dear students, here we will define the Euclid's 7 axioms or notions. The first axiom is things which are equal to the same thing are equal to one another. Means वो चीज़ जो एक ही चीज़ के बराबर होंगे वो आपस में भी बराबर होंगे. Means अगर A is equal to, dear students, or A is equal to B, and if A is equal to B and C is equal to A, C is equal to A, means A is equal to B and C is equal to A. So that means B is equal to C. क्योंकि both here B is equal to A and C is also equal to A. तो that means फिर यहाँ पे क्या होगा, B और C भी बराबर होंगे. तो यही हुआ कि things which are equal to the same thing, यहाँ पे B और C एक ही चीज़ के बराबर थे, दोनों A के बराबर थे, यानी कि B एंड C दोनों A के बराबर होंगे तो आपस में भी बराबर होंगे. एक तरह के यहाँ पे ट्रांजिटिविटी लगती है ये. B फिर किसके बराबर होगा, B C के बराबर होगा. तो इसको समझने के लिए और एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अगर दो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर होंगे तो वो चीज़ें आपस में भी बराबर होंगी. इसको समझने के लिए, और इफ एरिया ऑफ डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, area of circle is equal to area of trapezium, and area of trapezium is equal to area of rectangle. अब क्या लगता है यहाँ पे, एरिया सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो दोनों एरिया ऑफ सर्कल ट्रेपेजियम के बराबर, रेक्टेंगल ट्रेपेजियम के बराबर, तो आपस ये दो भी इक्वल होंगे. तो डैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. दिस इज द फर्स्ट postulate, the first axiom. Now the second one is, if equals are added to equal, then the wholes are equal. Means if equals are added to equals, इक्वल आर एड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. मीन्स जो पहले से इक्वल होंगे, अगर हम इनको इक्वल क्वांटिटीज ऐड करेंगे तो वो फिर से इक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे. इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी, और इनको दोनों ये इक्वल्स हैं, उनको इक्वल ही ऐड करेंगे, और दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट सी, ए प्लस सी फिर बराबर होगा बी प्लस सी. यानी कि हमने दोनों तरफ से यहाँ पे ऐड किया सी, यानी कि हमने इक्वल को ऐड किया, इक्वल्स पहले थे एंड बी, उनको ऐड किया, इक्वल सी हमने दोनों को ऐड किया, तब जाके ये जो होल्स है ये भी इक्वल होंगे. तो डैट मीन्स इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स. ये पहले से इक्वल थे, हमने ऐड किया इक्वल, दोनों तरफ से इसको ऐड किया, इक्वल अमाउंट सी ऐड किया, तब होल्स भी डियर स्टूडेंट्स इक्वल ही होंगे. Third axiom is equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Equals are subtracted here. If once again if you take a is equal to b, if equals are subtracted तो दोनों तरफ से इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि a माइनस सी एंड b माइनस सी. तो हमने इक्वल्स को क्या किया, इक्वल ही सब्ट्रैक्ट किए, इक्वल्स को हमने इक्वल ही सब्ट्रैक्ट किए. अगर ए बी के बराबर है तो दोनों तरफ से हमने इक्वल सब्ट्रैक्ट किया, तब ये रिमाइंडर्स भी, ये जो पार्ट्स है ये भी इक्वल हो गए. दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट, यानी कि दीज आर द ऑल यूनिवर्सल ट्रुथ्स. The fourth axiom is, dear students, things which coincide with one
अनदर आर इक्वल टू वन अनदर मीन्स थिंग्स विच कोइंसाइड टू, जो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड हियर मीन्स आइडेंटिकल होंगे। थिंग्स विच आर आइडेंटिकल टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका ये मतलब हुआ कि हर कोई चीज़ अपने आप के बराबर है। थिंग्स विच आर आइडेंटिकल, वो चीज़ें जो आइडेंटिकल होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्राइंगल ए बी सी, इसको समझने के लिए जैसे ट्राइंगल ए बी सी, तो ए एंड ए के बराबर होगा क्योंकि दे आर आइडेंटिकल, दे आर द सेम पॉइंट। इस तरह बी के बराबर क्योंकि ये आइडेंटिकल पॉइंट्स है। तो वो चीज़ें जो आइडेंटिकल होंगे वो कोइंसाइड करेंगे, वो एक दूसरे के होल is always greater than the part. To understand this postulate, let us take a circle. This is the diameter of circle. The upper part of the circle is semicircle. If we take the area of this semicircle and as whole and take the whole circle, यहाँ पे हम पूरा सर्कल लेंगे and area of this whole circle. Clearly यहाँ पे जो area of circle होगा dear students, it will greater than area semicircle. all ये whole is always greater than the part. और एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट here A, this is C and you take here point B. Clearly जो होल है यहाँ पे AC will be greater than its part AB and it is also AC will also greater than BC because AB and BC are its part. तो हमेशा होल पार्ट से बड़ा होता है। सिक्स्थ postulate is if things which are थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ें एक ही चीज़ के डबल होंगे वो आपस में इक्वल होते हैं। once again I will repeat, things which are double of the same thing are equal to one another. If A is equal to, for example, twice C and B is also equal to twice C, things which are double of the same thing are equal to one. फिर यहाँ पे आप देखेंगे फिर A B के बराबर होगा। And the seventh postulate is things which are half of the same thing are equal to one another. Seventh postulate, things which are half of the same thing are equal to one another. इसको फिर से सब निकला एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। if A is equal to half of C and B is equal to half of C, यानी कि बोथ आर हाफ ऑफ सी एंड बी आर हाफ ऑफ सी, और यहाँ पे थे ट्वाइस सी और यहाँ पे फिर से ए एंड बी इक्वल होंगे। तो दीज जो हमने यहाँ पे इक्वल के 7 एग्जाम्स यहाँ पे देखे हैं, दीज आर ऑल यूनिवर्सल ट्रुथ्स, यानी कि हमें प्रूव करने की यूनिवर्स ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अब डिस्कस करेंगे इक्वलिटिस postulate।